Want to bring in retired General Jack Keane. General, good morning to you. Great to have you back with us to go ahead and size this up. Ayatollah has been in charge for 37 years. This is what he said over the weekend. The U.S. had made extensive preparations to orchestrate this sedition. The sedition was a prelude to even bigger schemes. The Iranian nation defeated the U.S. Yes, we extinguished the fire of the sedition, but that isn't enough. The U.S. must be held accountable. At a minimum, you have 5,000 dead. Last week, that number was more than double that. I don't know what the real number is. Perhaps it's higher than that, General. With regard to the commander-in-chief, what are his options right now? Well, I think he's taking the right path here. I mean, he wants to replace the leadership in Iran, not just the Ayatollah, but all the mullahs and the hardliners that are around him. And certainly that's what the people in the streets are willing to sacrifice their lives for. And when we get a final tally, already, right now with the numbers the Iranians are releasing, that's the most brutal attack on their own population in their 45-plus year history. Fact. And it's going to escalate even more when they get the final tally on it. So this is the path we're on now. We want this regime to collapse. And that's the right path. The president is the 8th president to deal with this issue. 3 of the previous 7 presidents never retaliated when they killed Americans through their proxies. All of the presidents stood by while Iran increased its strength and its power and its influence in the region. This president, in 2018, slapped maximum sanctions on them and walked away from the nuclear deal, which would have given Iran a nuclear weapon if they wanted in 2030. And those maximum sanctions are paying the price right now and influencing these demonstrators to get out on the streets. Then he killed Soleimani, who was going to kill more Americans. They knew that, and is the guy that organized all the proxies to kill Israel and to kill Americans. And then he fully supports the war that Israel is prosecuting, decapitates Hezbollah, decapitates Hamas, and then destroys their nuclear system. This is the path we're at now. And now he has told them, I want this regime to go. And he said that he's going to support the people who protested and were willing to give up their lives. And I would take him at his word that that is exactly what is going to happen. Okay, all right. You got an aircraft carrier to be in the region, back in the Persian Gulf region, 4 or 5 days maximum, based on what I'm seeing here. Now you've got all these political and business leaders meeting in Davos, Switzerland this week, and the talk there, General, is going to be about this. It'll be about Ukraine. It'll be about Greenland. Here's Scott Bessent, Treasury Secretary, on Sunday. Has a terrible history with Greenlanders. There was forced sterilizations up until the 80s or the 90s. So all of a sudden, now that the U.S. has expressed an interest, there is this new interest. And again, the United States needs to be in control to prevent a war, and that we do not want to get dragged into someone else's war. So the administration's going out there trying to make the point. Here's the president, Truth Social. He says NATO has been telling Denmark for 20 years that you have to get the Russian threat away from Greenland. Unfortunately, Denmark has been unable to do anything about it. Now it is time, and it will be done, signed the president. And the NATO ambassador says that Europe has a tendency to overreact over this Greenland dispute. How do you see it? How do you move the ball? When does that happen, General? Well, Greenland has always been in the eye of many American presidents as being vital national interest, certainly. And now it's even grown more dramatically so. The air routes have always been an issue, certainly, because of ICBM missiles that Russia and China hold, and also bombers. And that is why we have early warning radar sites already in Greenland for that reason. The United States has them there. But now the navigation routes are opening because the ice is melting. And there are 2 countries that are adversaries of the United States. Call it what you may. I call them adversaries and enemies, Russia and China, and they hold nuclear weapons. And they also have navies that can prosecute through those navigation routes now that are open considerably more of the year. So it becomes more of a security issue. And I think it's in NATO's interest, certainly, to recognize the United States can do more for NATO's security in influencing it than certainly Denmark has done throughout its history. And now that the cooler heads will start to meet and we're in negotiations, I have a lot of confidence in Mark Rutte, who's the chief of NATO, and getting down into this. He's a voice of reason.
let's lower the rhetoric on both sides. Let's get into some real negotiations. What's the economic benefit for Greenlanders? What's the NATO benefit here for security? And certainly, what's the benefit for the United States as well? The three principal partners here, Denmark, Greenland, and the United States, I think we can get to some reasonable answer here that makes sense to everybody's mutual benefit. And believe me, we can help the Greenlanders prosper considerably more than what Denmark has done, and their history is horrific with forced sterilization, forced adoption of children, and other things that have taken place in the repression of these people. We have had bad history ourselves with some of this in our own country, to be sure. But I think the economic prosperity for them is an issue I would think they would find quite attractive. On the issue of a deal, I agree with you. At some point, we get there. Don't. क्या बताऊं भाई, मैं क्या बताऊं अब भाई, मैं क्या बताऊं देश में क्या हो रहा है और पार्लियामेंट में क्या चर्चा हो रही है। वंदे मातरम पर क्या तो रील आ रही है वंदे मातरम की, मैं क्या ही बताऊं। एक उदाहरण से बताऊं तो मैं क्या हो रहा है, जाने कि मैंने अपने खेतों में अभी गेहूं बो रखे और 20 साल पहले यहाँ पर एक आम का पेड़ लगा था। अब मैं सोचूं को वो आम का पेड़ मैं नहीं काटता तो कितना फल देता, ऐसा ऐसा। अब तो उसको काट दिया ना मैंने, अब उसके चर्चा करने पे क्या फ़ायदा। अभी तो इस फसल को देखूँ ना, इसमें खाद बीज डालूँ, पानी करूँ कि 200 साल पहले कि उस बीज के पेड़ आम को पेड़ को वापस लाया जाए, ऐसा होगा क्या। अभी इसी बेस पर वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है पार्लियामेंट। बताओ अब ये कौन सी तर्क की बात है, कौन सी साइकोलॉजी लगा रहे हैं ये नेता है या फिर गांव में से जले गए। इससे अच्छे तो हमारे गांव के सरपंच कर लेते हैं। भाई खत्म है भाई, हमारे बारे में नहीं, बेरोजगार के बारे में सोच लो। हमारे पास तो थोड़ी बहुत ज़मीन है, कर लेंगे खा लेंगे, लेकिन बेरोजगार जो भूखे सोते हैं, एक टाइम खाना के नसीब नहीं होता उनको, क्या बताऊं भाई, मैं क्या बताऊं अब भाई, मैं क्या बताऊं देश में क्या हो रहा है और पार्लियामेंट में क्या चर्चा हो रही है। वंदे मातरम पर क्या तो रील आ रही है वंदे मातरम की, मैं क्या ही बताऊं। एक उदाहरण से बताऊं तो मैं क्या हो रहा है, जाने कि मैंने अपने खेतों में अभी गेहूं बो रखे और 20 साल पहले यहाँ पर एक आम का पेड़ लगा था। अब मैं सोचूं को वो आम का पेड़ मैं नहीं काटता तो कितना फल देता, ऐसा ऐसा। अब तो उसको काट दिया ना मैंने, अब उसके चर्चा करने पे क्या फ़ायदा। अभी तो इस फसल को देखूँ ना, इसमें खाद बीज डालूँ, पानी करूँ कि 200 साल पहले कि उस बीज के पेड़ आम को पेड़ को वापस लाया जाए, ऐसा होगा क्या। अभी इसी बेस पर वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है पार्लियामेंट। बताओ अब ये कौन सी तर्क की बात है, कौन सी साइकोलॉजी लगा रहे हैं ये नेता है या फिर गांव में से जले गए। इससे अच्छे तो हमारे गांव के सरपंच कर लेते हैं। भाई खत्म है भाई, हमारे बारे में नहीं, बेरोजगार के बारे में सोच लो। हमारे पास तो थोड़ी बहुत ज़मीन है, कर लेंगे खा लेंगे, लेकिन बेरोजगार जो भूखे सोते हैं, एक टाइम खाना के नसीब नहीं होता उनको, क्या बताऊं भाई, मैं क्या बताऊं अब भाई, मैं क्या बताऊं देश में क्या हो रहा है और पार्लियामेंट में क्या चर्चा हो रही है। वंदे मातरम पर क्या तो रील आ रही है वंदे मातरम की, मैं क्या ही बताऊं। एक उदाहरण से बताऊं तो मैं क्या हो रहा है, जाने कि मैंने अपने खेतों में अभी गेहूं बो रखे और 20 साल पहले यहाँ पर एक आम का पेड़ लगा था। अब मैं सोचूं को वो आम का पेड़ मैं नहीं काटता तो कितना फल देता, ऐसा ऐसा। अब तो उसको काट दिया ना मैंने, अब उसके चर्चा करने पे क्या फ़ायदा। अभी तो इस फसल को देखूँ ना, इसमें खाद बीज डालूँ, पानी करूँ कि 200 साल पहले कि उस बीज के पेड़ आम को पेड़ को वापस लाया जाए, ऐसा होगा क्या। अभी इसी बेस पर वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है पार्लियामेंट। बताओ अब ये कौन सी तर्क की बात है, कौन सी साइकोलॉजी लगा रहे हैं ये नेता है या फिर गांव में से जले गए। इससे अच्छे तो हमारे गांव के सरपंच कर लेते हैं। भाई खत्म है भाई, हमारे बारे में नहीं, बेरोजगार के बारे में सोच लो। हमारे पास तो थोड़ी बहुत ज़मीन है, कर लेंगे खा लेंगे, लेकिन बेरोजगार जो भूखे सोते हैं, एक टाइम खाना के नसीब नहीं होता उनको, क्या बताऊं भाई, मैं क्या बताऊं अब भाई, मैं क्या बताऊं देश में क्या हो रहा है और पार्लियामेंट में क्या चर्चा हो रही है। वंदे मातरम पर क्या तो रील आ रही है वंदे मातरम की, मैं क्या ही बताऊं। एक उदाहरण से बताऊं तो मैं क्या हो रहा है, जाने कि मैंने अपने खेतों में अभी गेहूं बो रखे और 20 साल पहले यहाँ पर एक आम का पेड़ लगा था। अब मैं सोचूं को वो आम का पेड़ मैं नहीं काटता तो कितना फल देता, ऐसा ऐसा। अब तो उसको काट दिया ना मैंने, अब उसके
चर्चा करने पे क्या फायदा। अभी तो इस फसल को देखूं ना, इसमें खाद बीज डालूं, पानी करूं कि 200 साल पहले कि उस बीज के पेड़, आम को पेड़ को वापस लाया जाए, ऐसा होगा क्या। अभी इसी बेस पर वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है पार्लियामेंट। बताओ अब ये कौन सी तर्क की बात है, कौन सी साइकोलॉजी लगा रहे हैं ये नेता है या फिर गांव में से जले गए। इससे अच्छे तो हमारे गांव के सरपंच कर लेते हैं। भाई खत्म है भाई, हमारे बारे में नहीं, बेरोजगार के बारे में सोच लो। हमारे पास तो थोड़ी बहुत ज़मीन है, कर लेंगे खा लेंगे, लेकिन बेरोजगार जो भूखे सोते हैं, एक टाइम खाना के नसीब नहीं होता उनको, क्या बताऊं भाई, मैं क्या बताऊं अब भाई, मैं क्या बताऊं देश में क्या हो रहा है और पार्लियामेंट में क्या चर्चा हो रही है। वंदे मातरम पर क्या तो रील आ रही है वंदे मातरम की, मैं क्या ही बताऊं। एक उदाहरण से बताऊं तो मैं क्या हो रहा है, यानी कि मैंने अपने खेतों में अभी गेहूं बो रखे और 20 साल पहले यहाँ पर एक आम का पेड़ लगा था। अब मैं सोचूं को वो आम का पेड़ मैं नहीं काटता तो कितना फल देता, ऐसा ऐसा। अब तो उसको काट दिया ना मैंने, अब उसके चर्चा करने पे क्या फ़ायदा। अभी तो इस फसल को देखूं ना, इसमें खाद बीज डालूं, पानी करूं कि 200 साल पहले कि उस बीज के पेड़, आम को पेड़ को वापस लाया जाए, ऐसा होगा क्या। अभी इसी बेस पर वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है पार्लियामेंट। बताओ अब ये कौन सी तर्क की बात है, कौन सी साइकोलॉजी लगा रहे हैं ये नेता है या फिर गांव में से जले गए। इससे अच्छे तो हमारे गांव के सरपंच कर लेते हैं। भाई खत्म है भाई, हमारे बारे में नहीं, बेरोजगार के बारे में सोच लो। हमारे पास तो थोड़ी बहुत ज़मीन है, कर लेंगे खा लेंगे, लेकिन बेरोजगार जो भूखे सोते हैं, एक टाइम खाना के नसीब नहीं होता उनको, क्या बताऊं भाई, मैं क्या बताऊं अब भाई, मैं क्या बताऊं देश में क्या हो रहा है और पार्लियामेंट में क्या चर्चा हो रही है। वंदे मातरम पर क्या तो रील आ रही है वंदे मातरम की, मैं क्या ही बताऊं। एक उदाहरण से बताऊं तो मैं क्या हो रहा है, यानी कि मैंने अपने खेतों में अभी गेहूं बो रखे और 20 साल पहले यहाँ पर एक आम का पेड़ लगा था। अब मैं सोचूं को वो आम का पेड़ मैं नहीं काटता तो कितना फल देता, ऐसा ऐसा। अब तो उसको काट दिया ना मैंने, अब उसके चर्चा करने पे क्या फ़ायदा। अभी तो इस फसल को देखूं ना, इसमें खाद बीज डालूं, पानी करूं कि 200 साल पहले कि उस बीज के पेड़, आम को पेड़ को वापस लाया जाए, ऐसा होगा क्या। अभी इसी बेस पर वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है पार्लियामेंट। बताओ अब ये कौन सी तर्क की बात है, कौन सी साइकोलॉजी लगा रहे हैं ये नेता है या फिर गांव में से जले गए। इससे अच्छे तो हमारे गांव के सरपंच कर लेते हैं। भाई खत्म है भाई, हमारे बारे में नहीं, बेरोजगार के बारे में सोच लो। हमारे पास तो थोड़ी बहुत ज़मीन है, कर लेंगे खा लेंगे, लेकिन बेरोजगार जो भूखे सोते हैं, एक टाइम खाना के नसीब नहीं होता उनको, क्या बताऊं भाई, मैं क्या बताऊं अब भाई, मैं क्या बताऊं देश में क्या हो रहा है और पार्लियामेंट में क्या चर्चा हो रही है। वंदे मातरम पर क्या तो रील आ रही है वंदे मातरम की, मैं क्या ही बताऊं। एक उदाहरण से बताऊं तो मैं क्या हो रहा है, यानी कि मैंने अपने खेतों में अभी गेहूं बो रखे और 20 साल पहले यहाँ पर एक आम का पेड़ लगा था। अब मैं सोचूं को वो आम का पेड़ मैं नहीं काटता तो कितना फल देता, ऐसा ऐसा। अब तो उसको काट दिया ना मैंने, अब उसके चर्चा करने पे क्या फ़ायदा। अभी तो इस फसल को देखूं ना, इसमें खाद बीज डालूं, पानी करूं कि 200 साल पहले कि उस बीज के पेड़, आम को पेड़ को वापस लाया जाए, ऐसा होगा क्या। अभी इसी बेस पर वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है पार्लियामेंट। बताओ अब ये कौन सी तर्क की बात है, कौन सी साइकोलॉजी लगा रहे हैं ये नेता है या फिर गांव में से जले गए। इससे अच्छे तो हमारे गांव के सरपंच कर लेते हैं। भाई खत्म है भाई, हमारे बारे में नहीं, बेरोजगार के बारे में सोच लो। हमारे पास तो थोड़ी बहुत ज़मीन है, कर लेंगे खा लेंगे, लेकिन बेरोजगार जो भूखे सोते हैं, एक टाइम खाना के नसीब नहीं होता उनको,